رمضان نے گھیبان پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ 47 ارب کی خطی رقم کے ذریعے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج تیار ہو چکا ہے اور ہر خاندان کو 10-10 ہزار روپے کی امداد ملنے جا رہی ہے۔ تو کیا آپ بھی یہ 10 ہزار روپے کا رمضان پیکج وصول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مہنگائی کے اس مشکل دور میں ہر گھرانے کو اس امداد کی ضرورت ہے، تو بس اب آپ لوگوں نے اس امدادی پیکج کو حاصل کرنے کے حوالے سے مکمل معلومات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس بار رمضان پیکج کی رجسٹریشن کیسے ہو رہی ہے اور اس میں اہل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے ذریعے امداد کیسے وصول کرنی ہے۔ اس حوالے سے رجسٹریشن کرانے سے لے کر امداد لینے تک کا مکمل پروسیس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے نگہبان رمضان پیکج کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ پنجاب کے 42 لاکھ گھرانوں کو 10-10 ہزار روپے کی امداد نگہبان کارڈ کے ذریعے دی جائے گی۔ تو اس نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بھی علیحدہ رمضان پیکجز شروع کیے گئے ہیں۔ وہاں پر بھی 5 سے 10 ہزار روپے کی امداد فی گھرانہ جاری کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو شہباز حکومت کی جانب سے رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے وہ بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سارے لوگ اہل ہو سکیں گے، کیونکہ پورے پاکستان کی عوام میں سے 60 سے 70 لاکھ گھرانے اس پیکج میں اہل کیے جائیں گے۔ تو ان تمام امدادی پیکجز کے حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کریں گے کہ اب ان پیکجز میں رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور ان پیکجز کے ذریعے کب سے امداد ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو رمضان پیکج میں راشن کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ راشن کب اور کیسے ملے گا۔ تو ان تمام رمضان پیکجز کے امدادی پروگراموں کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، بلکہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل طور پر غور سے دیکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی معلومات سکپ نہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو ابھی آگے بڑھتے ہیں، مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کریں، تاکہ ان امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جو نگہبان رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنا چاہیں گے۔ جی ہاں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پورے پنجاب کی عوام کے لیے 47 ارب روپے کا بجٹ مقرر کیا ہے۔ اس بجٹ کے تحت صوبہ پنجاب کے 42 لاکھ گھرانے سلیکٹ کیے جائیں گے، اور ان 42 لاکھ خاندانوں کو فی گھرانے کے حساب سے 10-10 ہزار روپے کی امداد جاری کی جائے گی۔ اور اس بار یہ امداد تقسیم کرنے کا بالکل نیا طریقہ کار ہے، کیونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو 10-10 ہزار روپے کے چیک دیے گئے تھے، لیکن اب جو ہے کہ آپ کو چیک کی بجائے نگہبان کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ یہ نگہبان کارڈ آپ سب لوگوں کو ملیں گے، یعنی کہ ہر گھرانے کا ایک ایک کارڈ جاری ہوگا۔ وہ کارڈ آپ لوگ وصول کریں گے اور اس کارڈ کے ذریعے آپ نے 10 ہزار روپے کی امداد نکلوانی ہے۔ جی تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کے لیے حکومت کی جانب سے یہ کارڈ پرنٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس آلریڈی موجود ہے تو ان لوگوں کے یہ کارڈ بننا بھی شروع ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ان لوگوں کے لیے ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے کہ وہ لوگ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کا پروسیس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں کا ایک PSER سروے ہوتا ہے۔ یہ PSER سروے لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا PSER سروے مکمل نہیں تو پھر آپ کو اس رمضان پیکج میں اہل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ PSER سروے کیا ہے، اس میں کیسے رجسٹر ہونا ہے، اس کی اپلائی کیسے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اس رجسٹریشن کو مکمل کروانے کے لیے پہلے ایک پورٹل جاری کیا گیا تھا جو کہ PSER.punjab.gov.pk یہ پورٹل کا مکمل نام ہے۔ اس پورٹل کو اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گی، وہاں پر آپ کا آن لائن سروے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہے کہ حکومت کی جانب سے لوکیشن بیسڈ PSER سروے شروع کیا گیا ہے، جو کہ آپ لوگ خود یہ سروے نہیں کر سکتے، بلکہ حکومت کی جانب سے آپ کے گھر پر ایک نمائندہ آ کر آپ کا مکمل سروے کر سکتا ہے، کیونکہ پورے پنجاب کی عوام کا یہ سروے تقریباً مکمل کیا گیا ہے۔ 90% سے زیادہ عوام کا یہ سروے مکمل ہو چکا ہے۔ چند ایک لوگ رہتے ہیں جن کا یہ سروے ابھی ہونے والا ہے، تو جن لوگوں کو ابھی یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ PSER سروے نہیں ہوا تو آپ سب لوگوں نے اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کرنی ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں، یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 080002345، یعنی کہ 08 آگے 3 بار 0 ہے اور پھر 2345 ہے، یعنی کہ 08000 پورا 2345۔ اس نمبر
नंबर पर अगर आप कॉल कर लेते हैं तो आगे नुमाइंदा कॉल पिक करेगा। ये PSCR सर्वे की हेल्पलाइन नंबर है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके नुमाइंदे को ये कहेंगे कि हमारा अभी तक PSCR सर्वे नहीं हुआ। PSCR सर्वे अगर आपका नहीं हुआ होगा तो फिर वो नुमाइंदा फौरी तौर पर आपके फील्ड ऑफिसर जो कि आपके इलाके का PSCR सर्वे करने वाला नुमाइंदा होगा उससे रब्ता करेगा और उसको कहेगा कि फलां लोकेशन पर पहुंचकर ये PSCR सर्वे मुकम्मल करें। तो फिर आपका ये सर्वे बहुत जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा और फिर आप रमज़ान पैकेज में अहल हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों का ये सर्वे नहीं हुआ वो फौरी तौर पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना ये सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के लिए जो हेल्पलाइन जारी की गई है वो 80-70 की हेल्पलाइन है, यानी कि रमज़ान पैकेज के हवाले से आप लोगों को जो मैसेजेस भेजे जाएंगे वो 80-70 से मैसेज आएंगे और इसके बाद आपको जो निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा वो निगहबान कार्ड आपके करीबी यूनियन काउंसिल में पहुंचाया जाएगा। और इससे पहले कि हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि अब हुकूमत की जानिब से जिन जिन लोगों के कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं तो तमाम यूनियन काउंसिल्स में से अहल होने वाले लोगों की लिस्टें बनाई जा रही हैं, यानी कि जो लोग अब कार्ड के लिए अहल हो रहे हैं उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। तो जो लोग भी अहल होंगे वो लोग अपने नाम इन लिस्टों के जरिए भी चेक कर सकेंगे। तो अगर आप लोग अपने अपने ज़िला की ये लिस्टें मंगवाना चाहते हैं तो अभी से हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाएं और इस वीडियो के कमेंट्स में आपने लिस्ट भी लिखना है और साथ में अपने ज़िला का नाम भी लाजमी लिखना है ताकि आपके ज़िला की जो भी लिस्ट है वो हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाएं। और हाँ, अब जो है कि आपने निगहबान रमज़ान पैकेज का कार्ड हासिल करने के हवाले से ये 2 काम भी लाजमी करने हैं। पहला काम ये है कि जो आपने PSCR सर्वे करवाया हुआ है या अभी आपका ये PSCR सर्वे होगा, इस सर्वे में अगर आप मर्द को सरबराह बनाएंगे तो ये इमदाद आपको मर्द के नाम पर जारी होगी। अगर औरत को सरबराह के तौर पर लिखवाएंगे तो फिर आपकी इमदाद औरत के नाम पर आएगी। तो जिसको आपने सरबराह के तौर पर लिखवाया हुआ है उसका शनाख्ती कार्ड आपने चेक करना है, शनाख्ती कार्ड को देखना है। अगर ये शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फिर आप रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अभी जो है कि आपने अपने ये शनाख्ती कार्ड लाजमी चेक करने हैं। शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो नया शनाख्ती कार्ड बनवाएं। 10-15 दिन तक आपको नया शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा, फिर आपको कार्ड भी मिलेगा, यानी कि निगहबान कार्ड के जरिए आपको 10,000 भी मिल जाएंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको दूसरा काम भी बताते चलें कि जो PSCR सर्वे करवाते हुए आप अपना फ़ोन नंबर लिखवा रहे हैं या पहले से ये नंबर लिखवा चुके हैं तो वो फ़ोन नंबर आपने एक्टिव रखना है। ये फ़ोन नंबर अगर आपका बंद हुआ तो फिर भी आपको रमज़ान पैकेज का ये कार्ड हासिल करने में दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि ये कार्ड जब भी आपके करीबी यूनियन काउंसिल में आपके पते पर पहुंचाया जाएगा तो उस वक्त यूनियन काउंसिल वाले आपको कॉल करेंगे कि आपका निगहबान कार्ड मौसूल हो चुका है, अपना कार्ड यहाँ से वसूल करें। तो जब आपको कॉल आ जाएगी फिर आपने जाकर अपना कार्ड वसूल करना है। तो इस हवाले से आपने अपने फ़ोन नंबर को भी लाजमी एक्टिव रखना है। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कार्ड प्रिंट होना शुरू हो चुके हैं, मुस्तहिक लोगों की लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। तो ये कार्ड आप लोगों को 10 फरवरी के बाद तकसीम होना शुरू हो जाएंगे और जो लोग भी अहल हो रहे हैं इन सब लोगों को 80-70 से मैसेजेस भी 10 फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे। और अब जो है कि हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जब आपको ये कार्ड मिल जाएगा, कार्ड वसूल करने के बाद आपने एक एक्टिवेशन सेंटर पर जाना है। ये एक्टिवेशन सेंटर हर यूनियन काउंसिल में बनाए जाएंगे। एक्टिवेशन सेंटर पर पहुंचकर आपने अपना निगहबान कार्ड एक्टिवेट करवाना है। वहां पर खातून का या मर्द का जिसके नाम पर PSCR सर्वे हुआ है या जिसके नाम पर ये कार्ड आया है उसका फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन भी होगी और वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आपने 10,000 रुपए की इमदाद बैंक ऑफ पंजाब की ATM से निकलवानी है या फिर बैंक ऑफ पंजाब की ATM के अलावा बैंक ऑफ पंजाब के रिटेलर के पास जाकर भी ये पेमेंट निकल आएगी। तो इस तरीकाकार को फॉलो करने से आपको भी 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको अगले रमज़ान पैकेजेस के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे जो कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी किया गया है। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अगर आप इस सूबाई हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं और आपको 10,000 मिल जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज में भी आप अहल हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको ये 5 से 10,000 रुपए तक की इमदाद मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, शहबाज हुकूमत की जानिब से ये 5 से 10,000 रुपए कैसे वसूल किए जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा ये इमदाद अकाउंट सिस्टम के जरिए मिलनी है तो अकाउंट में कैसे इमदाद हासिल करनी है, तो ज़रा गौर से इस मालूमात को समात फरमाइएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस रमज़ान पैकेज के जरिए पिछले साल की निस्बत दुगनी इमदाद दी जा रही है। पिछले साल 5,000 दिए गए थे तो इस बार 5 की बजाय 10,000 रुपए तक की इमदाद मिलने जा रही है। तो आपको क्लियर कट बताते चलें कि पिछले साल इस पैकेज के जरिए 40 लाख लोगों को इमदाद मिली थी, तो इस बार 60 से 70 लाख लोगों को ये इमदाद मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता चुका हूँ कि 5,000 से भी
इजाफी इमदाद आपको मिलनी है। तो इसके लिए जो शार्ट कोड जारी किए गए हैं, एक 8171 है और दूसरा 9999 यानी कि 9999 का शार्ट कोड है। तो इन कोड्स पर अभी आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। वैसे आप लोगों के लिए इन कोड पर अप्लाई करने के हवाले से भी एक खुशखबरी आ चुकी है कि आप इन कोड्स पर मैसेजेस करके भी अहल हो सकेंगे। तो ये कुछ इस तरह से है कि जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है वो लोग रमज़ान पैकेज में अहल हैं, यानी कि उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका ये बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं हुआ तो उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा, यानी कि वो लोग शार्ट कोड के ज़रिए अहल हो सकेंगे। इसके अलावा उन लोगों के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। तो आपको क्लियर तौर पर बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से लोगों को पहले नंबर पर सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से आउट हैं, यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे जिनका नहीं हुआ, वो लोग इसमें अहल होने के लिए शार्ट कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक शार्ट कोड को बहाल नहीं किया गया। शार्ट कोड जो ही बहाल होगा तो वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस हवाले से आप सब लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है और साथ घंटी के निशान को आल पर सिलेक्ट कर दें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ये इमदाद आपको अकाउंट सिस्टम के ज़रिए मिलने जा रही है। तो अकाउंट सिस्टम के ज़रिए पैसे किस तरह से लेने हैं इसको भी गौर से समझ लीजिएगा। तो ये हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम फैसला किया गया है। फैसला कुछ इस तरह से हुआ है कि लोगों को पैसे लेने के लिए एजेंट्स के पास जाना पड़ता था, ख़वातीन की तजलील होती थी, लेकिन अब जो है कि ख़वातीन को पैसे उनके अकाउंट में घर बैठे मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पर जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं और उनको वैलेट सिमें मिल चुकी हैं, उनके पैसे रमज़ान पैकेज वाले उनकी वैलेट सिम पर आ जाएंगे, यानी कि उनकी सिम पर वैलेट अकाउंट खुला हुआ है, उनके वैलेट अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं है या जिनको अभी तक ये वैलेट सिम नहीं मिली, उन लोगों की जो सिम बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर हुई थी उस सिम पर उनके पैसे आएंगे, यानी कि ये 5 से 10 हज़ार रुपये उन लोगों की उस सिम पर आएंगे जो बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुई है। और ज़रूरी और अहम बात आप लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप लोग ये पैसे अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं तो ख़ास तौर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाली सिम के ऊपर अपना ईजी पैसा या जैज़ कैश वाला अकाउंट ओपन रखें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये ईजी पैसा जैज़ कैश वाले अकाउंट में उन लोगों को पैसे मिलेंगे जिनके इज़ला में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे ईजी पैसा या जैज़ कैश के बैंक के थ्रू दिए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इज़ला में HBL कनेक्ट का अकाउंट भी इस्तेमाल किया जाता है और बैंक अल-फलाह के अकाउंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिस ज़िला में जो बेनज़ीर प्रोग्राम का बैंक काम कर रहा है उस ज़िला में उसी बैंक के वैलेट में आपको पैसे दिए जा सकते हैं। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के ये अकाउंट नहीं हैं, जिन लोगों की सिमों के ऊपर कोई ऐसे अकाउंट खुले हुए नहीं हैं, तो उन लोगों ने भी परेशान नहीं होना, उनके पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों को पैसे निकलवाने के लिए करीबी एजेंट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से उन ख़वातीन को भी पैसे मिल जाएंगे। और इस पैकेज के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और आपको इस पैकेज के ज़रिए 5 से 10 हज़ार रुपये तक की इमदाद अगले हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आप सब लोग अपने सिमों और शनाख्ती कार्ड्स को एक्टिव रखें ताकि आपको भी इस रमज़ान पैकेज में अहल करके इमदाद दी जा सके। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि सूबा पंजाब के अलावा अब सूबा सिंध में भी रमज़ान पैकेज अलहदा तौर पर शुरू हो चुका है। सिंध हुकूमत की जानिब से पूरे सूबा सिंध की आवाम के लिए 30 से 35 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसके तहत सूबा सिंध में हर मुस्तहिक घराने को 5 से 10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। और इस पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे होना लाजिम है। तो जिन जिन लोगों का सूबा सिंध में बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है वहाँ पर इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद भी ज़रूर पहुँचाई जाएगी। और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जिस तरह से लोगों को सूबा सिंध में दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको इस रमज़ान पैकेज के पैसे भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात है कि सूबा सिंध में जो रमज़ान पैकेज हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, इस पैकेज में सूबा सिंध के काफ़ी सारे घराने सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि सूबा सिंध में भी पिछले साल की निस्बत इस बार ज़्यादा बजट मुकर्रर किया गया है और ज़्यादा लोग इस पैकेज में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताएंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए भी रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो चुका है। वहाँ पर KP की हुकूमत की जानिब से 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है। वहाँ पर इस बजट के ज़रिए 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ी ख़ानदान जारी किए जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो ख़ानदान मुस्तहिक और गरीब होंगे उन्हीं को ही ये 10 से 12 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम का डेटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के अलावा KP के हुकूमत की जानिब से हर यूनियन कौंसल में इंतज़ामिया मुकर्रर की जाती है और उस यूनियन कौंसल में मौजूद मुस्तहिक लोगों की लिस्टें बनाई जाती हैं और उन लिस्टों के ज़रिए भी लोगों को अहल किया जाता है और उन्हें 10 से 12 हज़ार रुपये इस बार दिए जाएंगे।
گے تو جن جن لوگوں کو اہل کیا جائے گا ان سب لوگوں کو یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے بھی دیے جا سکیں گے، یا پھر اس کے علاوہ بائی ہینڈ نقد کیش کی صورت میں امداد بھی جاری کی جا سکے گی۔ اور اگر آپ لوگ انہی تمام امدادی پیکیجز کے حوالے سے مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، اس میں رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی معلومات اگر آپ مزید لینا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ کمنٹس میں تھینکس بھی لکھنا ہے۔ ہم آپ کو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔